So hello and welcome to all to this video in which we in this series we are discussing the PYQs of different year from the UGC NET, and this video is beneficial for the aspirants for the UGC NET, CUET, LLM, UP, HESC, CLAT PG and LLM entrance exam. So if you are new to this channel and this is the first video which you are watching, so in this series what I am doing is I am discussing the pattern and how to tackle particular question. Moreover, explanations, I'm giving the explanation if some new concept is emerging, because earlier videos में 2018 19 20 तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, तो उसमें बहुत से कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। ठीक है, इसमें जो हमें नए कॉन्सेप्ट मिलते जाएंगे आई विल बी एक्सप्लेनिंग, बिकॉज बार बार उनको एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो वो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट देखना है तो आपको शुरू से एक बार आप पूरी सीरीज को देखोगे तो आपको बहुत से जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। स्टिल इफ आई एम गेटिंग समथिंग न्यू आई एम also reiterating, if I am finding something that need should be reiterated, because many people are going to watch this video for the very first time. सो दिस इज द केस। बेसिकली इस वीडियो को बनाने के पीछे का रीजन ये है ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आ चुके हैं उनको कैसे टैकल करना है। थर्ड थिंग इज एक्सप्लेन, उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, अगर कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज देयर तो उसको कैसे आपको समझाया गया है उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। Lastly, the most important thing is that through these video you can very easily revise, because the key to crack any exam is remembrance the concept, and to remember the key is the revision. So I hope आपको समझ में आ गया होगा कि why I am making all these videos and why they are important for you. So we will be moving on and taking the first question. So the very question is one of the hard question. अगर आपने मेरी earlier videos देखी हैं तो you know what I call a hard question. Hard question एक ऐसा question होता है कि जिसका हमें बहुत ही मुश्किल होता है कि उसका हमें आंसर पता हो, and that question is that type of question which if the exam is of negative marking तो we should avoid। तो ये उसी प्रकार का कोई question है। और but still, we will read Section 53 of the Consumer Protection Act of 2019 provides for establishment of National Consumer Dispute Redressal Commission, because the question itself says that it's from some minor law। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया कि माइनर लॉस को लेके आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर किसी में कोई कमीशन बनी हुई है, नेशनल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, तो उनसे रिलेटेड प्रोविजंस आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी से सवाल मैक्सिमम पूछा जाता है। दूसरा, इफ देयर इज सम काइंड ऑफ डेफिनेशन क्लॉज, जो कि हर किसी में होता ही है, सेक्शन 2, मोस्टली लॉज में सेक्शन 2 से डेफिनेशन क्लॉज, तो वो आपको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना है, वो पता होना चाहिए। इसके अलावा फिर आप इससे ज्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि द सिलेबस इज वेरी वाइड और ज्यादातर क्वेश्चन जो मेजर लॉ से पूछे जाते हैं उनको हमें डीप में पढ़ने की जरूरत है। So the answer to this question is, having said all this, the answer to this question is option A, that is National Commission. So I hope I have explained what is needed to be explained. So we will be taking the next question. Another important question from the company law. The question is, removal of members of company law appellate tribunal can be carried out in consultation by one, that is central government; B, that is Chief Justice; three, the chairperson of appellate tribunal; four is the auditor general. So very straightforward question है, तो इसका आंसर है A, that is it can be carried out by the consultation of the central government and chief justice. So this is the answer, very straightforward. I don't think I need to explain anything in this question. So we will be taking the next question. Okay, this question is interesting question from the constitutional law. So I will tell you, I will give you advice how to tackle this question. So first we will read which of the following statement are correct. All the statements are relating to the preamble. So we will read the first statement. The preamble contains in nutshell ideals and aspirations of the constitution. Yeah, this is truth. Okay, this statement is absolutely correct. So we will read the second explanation. That is, the preamble is the key to open minds of the constitution makers. Yes, indeed, this is also right. It is also held in the Berubari Union case 1960, and Kishananda Bharti, जो first statement है, that is somehow related to Kishananda Bharti versus state of Kerala. So yeah, both of these statements are true. So now we will be reading the third statement.
The preamble to the Constitution of India is solemnly resolved to secure to its citizens justice and equity. ठीक है. सो यहाँ पर एक चीज जो गौर करने वाली है, ठीक है, वो ये है कि यहाँ पर जो दो शब्द यूज है, जस्टिस इज फाइन, द सेकंड वर्ड इज इक्विटी, नॉट इक्वालिटी. ठीक है. तो जो एग्जाम का क्वेश्चन सेटर्स होते हैं, ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीजों पे ना थोड़ा सा आपको भटकाने की कोशिश करेंगे. ठीक है. हालांकि अगर आप ब्रॉडर सेंस में देखेंगे, जब आप डीपली देखेंगे, तो मे बी ये करेक्ट हो सकता है, बट व्हेन द एग्जाम सेटर इज सेटिंग समथिंग, तो वो उसमें थोड़ा लूप होल डालने की कोशिश करता है. ठीक है. क्योंकि सवाल का जवाब आपको बिल्कुल ही जो एक गोला बना दिया जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, उसकी एक बाउंड्री होती है, उसी की बाउंड्री के अंदर ही आपको सवाल का जवाब देना होता है. तो जब हम इसको पढ़ेंगे, द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सोlemnly रिजॉल्व टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन जस्टिस एंड इक्विटी. इक्विटी, द वर्ड इक्विटी इज नॉट यूज, इट्स इक्वालिटी. सो ये ऑप्शन, इसीलिए इस क्वेश्चन की बाउंड्री के अंदर ये ऑप्शन सही नहीं होगा. सो चौथा ऑप्शन, द प्रीएम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये तो गलत है ही. ठीक है. तो अ, चारों में से सिर्फ दो ऑप्शन यानी कि 1 और 2 आर करेक्ट. आई होप मैंने इस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन की बाउंड्री को समझना है, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी है. तो आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Again, the question from the chronological order, and I've already discussed in the earlier videos that this is one of the tough question. So you just go through. Explanation is given. Try to remember this through revision. That is the only advice. So we will be moving on to the next question. Okay, this is very simple question. ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. दैट इज द कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस. जब तक सक्सेसर ऑफिस में एंटर नहीं हो जाता, पद को अमूमन जितने भी बड़े संवैधानिक पद होते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता है, क्योंकि एक कंटिन्यूटी ऑफ द ऑफिस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है. तो ये इसी से रिलेटेड है. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एक्सपायर ऑफ हिज टर्म, सो द आंसर इज सी, कंटिन्यूस टू होल्ड ऑफिस until successor enters upon the office. So I hope I have made this that very clear. It is also there in under Article 67B that their successor assumes office or they are elected for another term. तो ये एक्सप्रेसली भी मेंशन है. तो इसमें ज्यादा कुछ अब एक्सप्लेन करने का है नहीं. मैंने दोनों चीजें एक्सप्लेन कर दी, कॉन्सेप्ट भी जो कि बाकी पदों से रिलेटेड है, और दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन. सो वी विल बी मूविंग ऑन एंड टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, another question from the match the following. This is very easy question. ठीक है. और आपके लिए एडवाइस ये है कि आप ये चारों चीजें याद कर लें. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, जिसका जो भी आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखा है, ये आपको इसके थ्रू भी याद करना है. और यहाँ पे जाने के बाद सर्च भी करना है. अभी हाथों हाथ इसको सर्च करके अपनी नोटबुक में नोट भी कर लेना है, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या फायदा होगा आपको, ये तो याद तो करने ही करने हैं आपको, इससे तो आप बच नहीं सकते. ठीक है. द सेकंड थिंग इज, जैसे ही आपको पता होगा ना, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज अंडर आर्टिकल 3338B. तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दैट इज बी. तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि एलिमिनेशन एक टूल है जो कि आपको टाइम भी सेव करके देता है, सही आंसर के साथ साथ टाइम सेव भी करके देता है. और मैच द फॉलोइंग में जरूरी नहीं है आपको सारे ऑप्शन पता हो. अगर आपको एक या दो भी पता है, तो मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे बनाता है कि आप एलिमिनेशन के थ्रू उसको आंसर कर सकते हैं. तो आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर. सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो सेम क्वेश्चन ये आया था हमारा पिछले साल भी, यानी कि 2020 में भी ये पूछा गया था. ठीक है. तो उस पीवाईक्यूज में भी मैंने ये बताया था कि ये जितने भी 371 आर्टिकल 371 से रिलेटेड है, ये सारे के सारे आप एक बार इनको जरूर याद कर लें. और वैसे तो कोशिश करें कि सारे ही पता हो, वरना पहला, लास्ट और बीच का एक या दो तो पता होने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं. ठीक है. तो कहीं ना कहीं अगर हमें सारे भी ना पता हो, तो एटलीस्ट ये तीन तो पता हो, बीच का, सबसे ऊपर वाला, सबसे नीचे वाला, ताकि हम थोड़ा सा ऊपर नीचे करके ऑप्शंस को मिला के करेक्ट आंसर तक पहुंच जाए. ठीक है. इतने बहुत सारे ऑप्शंस जब दिए होते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होती है, तो इसी तरीके से आप क्योंकि जरूरी नहीं है आपको सारे पता हो, पर जो पता हो उसके बेसिस पे ऑप्शंस को आप एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं. सो दिस इज द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव. सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ओके, दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधा सीधा प्रोविजन दे दिया है और सीधा सीधा सवाल पूछ लिया है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के लगभग 100-150 आर्टिकल्स है, या फिर किसी भी एक्ट के लगभग 100-150 आर्टिकल या सेक्शंस होते हैं, प्रोविजंस होते हैं, जो मेजर लॉज हैं, जिनमें से 75% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इमरजेंसी आर्टिकल 368, दीज आर वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सीधा सीधा सवाल है इसका। द स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 can be imposed in a state by the president for a maximum period, and the answer is 3 year। 6 6 महीने में एक्सटेंडेबल होता है, बट मैक्सिमम इज 3 year। सो एक्सप्लेनेशन बराबर में दे भी रखी है, आप याद भी कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। सो वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये देखिए, अगर आप पहले से वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो आपने 100% नोट डाउन किया होगा कि ये केस, ये ही सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। बस उसमें ये पूछा था कि कौन कौन से केसेस आर रेलिवेंट टू द यूसीसी, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। और इसमें बस सवाल को उल्टा कर दिया है एग्जामिनर की, इनमें से कौन सा केस इज नॉट रिलेटेड टू द यूसीसी। तो अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी हैं तो आपने जरूर मार्क किया होगा और आपको पता होगा कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो के इज रिलेटेड, सरला मुग्दल इज रिलेटेड, एंड जॉन वेलमीटन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज आल्सो रिलेटेड। सो द ओनली एक्सेप्शन which is there is अशोक हुरा वर्सेस रूपा वाला केस, दिस इज नॉट रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आप इसको नोट डाउन करेंगे। और आपने देख ही लिया कि रिपीटेशन भी होता है और सवाल ऑलमोस्ट उन्हीं क्षेत्रों से आते हैं जो मैंने पहले से ही बता रखे हैं आपको। तो आई विल बी मूविंग एंड टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया बहुत ही टिपिकल एंड आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, या तो आपको आता है या नहीं आता है, इसमें कोई और ऑप्शन है नहीं। तो आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, जस्ट गो थ्रू दिस। याद कर लो, एक दो आर्टिकल ऊपर नीचे के भी याद कर लेना, ताकि दोबारा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए जो आपको लगे उसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप जवाब दे पाए। और इसको तो नोट डाउन कर ही लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द आंसर इज आर्टिकल 5। सो नथिंग मोर टू एक्सप्लेन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको ये सारे के सारे आर्टिकल पता होने ही चाहिए, बिकॉज मैंने पहले ही एक लिस्ट बताई है कॉन्स्टिट्यूशन में से जो आपको डीपली गो थ्रू करनी है, और वो तो आपको रिमेम्बर करने ही करने हैं, याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, आप इसमें भी हम थोड़ा सा एलिमिनेशन तो लगा ही सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 61 तो बहुत इजी है, दैट आर्टिकल 61 डील्स विद द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब जैसे कि यानी कि वन सही हो गया तो ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो ही गया। आर्टिकल जो दूसरा स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 142 प्रोवाइड्स दैट लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स। तो ये इससे रिलेटेड नहीं है, आर्टिकल 141 है, तो ये तो बहुत इजी है। तो दो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो यानी कि ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए, तो अब बचा क्या, वन या तो, यानी कि तीसरा तो ऑटोमेटिकली सही है ही है। अब हमें सिर्फ चौथा वाला पढ़ना है, तीसरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो चौथा पढ़ेंगे। आर्टिकल 163 डील विद द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव, इट इज नॉट, so it is not correct। So what is the correct option then? The option which is correct is option 1, statement 1 and 3। as simple as that। elimination तो भाई की है, it is the very important tool। ठीक है, बिकॉज क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो हमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मार्क करने होते हैं। तो एलिमिनेशन से अगर दो ऑप्शन बच रहे हैं तो हमारे लिए इजी हो जाता है उसको मार्क करना। ठीक है, so having said that, having told the technique, now we will move on and take the next question। Another direct question from the constitutional law, जिसमें डायरेक्टली प्रोविजन देकर आपसे सवाल पूछ लिया गया है। अब इसमें मैंने पहले भी आपको राय दी है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, चाहे वो अटॉर्नी जनरल हो, या फिर प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, कोई कमीशन है तो वो हो, कोई चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो, चाहे वो इंटरस्टेट कमीशन हो, चाहे वो वाटर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन हो, कोई सी भी चीज कमीशन या कोई सा भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद दैट इज मेंशन, चाहे वो इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या फिर कोई सा भी पद, इफ दैट इज मेंशन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आप गार्ड बांध लो कि वो स्वर्ण उसमें से क्वेश्चन आना बहुत ही बहुत ही इजी है। एंड डिफरेंट एग्जाम्स में डिफरेंट पदों से सवाल पूछे जाते हैं।
तो जो मैंने बताया था ना कि कोई भी एक्ट हो तो उसमें से ऑलमोस्ट 100 से 150 या 125 आर्टिकल्स या क्वेश्चन प्रोविजोस जो होते हैं वो उसमें से 75% क्वेश्चन आते हैं। तो ये वही प्रोविजोस हैं जो मैंने भाइयों आपको पहले ही बता दिया है। सो ये इसमें एडवाइस ही देनी थी, समझाने वाला तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो आई होप यू आर मेकिंग नोट्स और ये इन सब चीजों को, इन सब पॉइंटर्स को आप दिमाग में रखे हुए हो। And I think I have to make I will make one video on this only कि क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन सी चीजों को आपको दिमाग में रखना है. So yeah, so this is the advice. Moving on to the next question. Another very important question and yet very interesting question, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंटर्स ऐसे दे रखे हैं जो कि अगर आपने डीपली काउंसिल ऑफ स्टेट्स को नहीं पढ़ा है तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे. बहुत ही रोचक रोचक सवाल है. ठीक है, आप पढ़ते हैं सवाल को. अंडर द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोल्यूशंस कैन ओरिजिनेट ओनली इन राज्यसभा. ठीक है, ओनली इन राज्यसभा की बात हो रही है. तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले एक रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. या इट्स ट्रू. क्यों? वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. तो ये पावर दे रखी है अंडर सेक्शन 67B. दूसरा है एनी रेजोल्यूशन सीकिंग क्रिएशन ऑफ वन और मोर ऑल इंडिया सर्विसेज. दैट इज आल्सो ट्रू गिवन अंडर आर्टिकल 312 यानी कि 312. थर्ड, एनी रेजोल्यूशन सीकिंग लेजिस्लेशन ऑन स्टेट सब्जेक्ट. यस, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं बट यस दिस पावर इज आल्सो देयर अंडर आर्टिकल 249 दैट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन बाय टू थर्ड मेजोरिटी टू अलाउ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट इन नेशनल इंटरेस्ट. सो या ये बहुत ही रोचक तथ्य है एंड बहुत आर्टिकल 249 बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, लास्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, तो ये तो गलत है. ये तो बहुत ही कॉमन उसका क्वेश्चन है हमारा. इट कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा, दैट इज हाउस ऑफ द पीपल. सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड. सो वी विल बी टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम पैसेज. मैंने पैसेज को आपको पहले ही बता दिया है कि पैसेज पर ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है नहीं. आप पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैसेज को पढ़ो तो आपके लिए बहुत ज्यादा सरल होगा. क्योंकि मोस्टली ऐसा क्या हुआ है कि जो क्वेश्चन है ना उसका कोई लेना देना है ही नहीं पैसेज से. मतलब इफ दैट पैसेज डज नॉट एग्जिस्ट इन दैट एग्जाम, इवन इफ यू कैन आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. मोस्टली केसेस में ऐसा हुआ है बट कहीं पे ऐसा भी है कि एक या दो क्वेश्चन का जवाब आपको उसको पैसेज को पढ़ के देना पड़ेगा. बट दैट फॉर दैट उसका कोई उसका उसमें कोई हिंट नहीं है. ठीक है, लेकिन जैसे जजमेंट के कोई एक्सट्रैक्ट दे दिया है तो उसमें तो उसका इंपॉर्टेंस बन जाता है. क्योंकि आपको एक उसको पढ़कर थोड़ा फाइंड आउट करना होगा कि वो कहाँ से रिलेटेड है. जैसे कि इसको जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी, डिग्निटी हैज बोथ. तो ये आपको पैसेज पढ़ के समझ में आ जाएगा. ना ही ये एडीएम जबलपुर से, ना ही मोहिनी जैन से, ना ही मेनका गांधी से हो भी सकता था. बट क्योंकि पहली लाइन में प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ डिग्निटी एंड दिस इज ऑल अबाउट प्राइवेसी. और प्राइवेसी का जब हम तुक्का लगाएंगे तो सबसे ज्यादा करीब जजमेंट जो उसके पाएंगे दैट इज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर. ओके, so I think I have made my point very clear. I have given you my advice on the passage that is now asked in the UGC net papers. So we will be taking the next question. Okay, I have also explained the judgment there in the last question which is mentioned. KS Puttaswamy वाली तो थोड़ी सी इसमें डिटेल में दे दी है. बाकी अदर why these are not the option ये भी मैंने मेंशन कर दिया है. तो जस्ट इसको गो थ्रू कर लो, टेक डाउन द नोट्स एंड मूव ऑन. अब ये तो बिल्कुल ही उलट क्वेश्चन पूछ लिया है बट इसका जवाब मेरे को भी नहीं पता. बट वी हैव द आंसर दैट इज एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा. लेकिन आप इसको याद कर लो बिकॉज 100% ये कहीं ना कहीं रिपीट होगा और आपको इसका जवाब पता होगा. ठीक है, तो नोट डाउन कर लो. बाकी केसेस भी मैंने इसलिए थोड़े से एक्सप्लेन कर दिए हैं ताकि उनको याद कर लो. अब पुट्टा स्वामी तो आपको पता ही पहले भी मेंशन हो गया है. बाकी ये दो केसेस ऑल्सो द फोर केसेस नोट डाउन. और आपको देखो एक पॉइंट तो करना ही है. जहां पर भी जो भी केस जिस भी क्वेश्चन में मेंशन है आपको सारे के सारे पढ़ने हैं. क्योंकि पता नहीं और ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि वही क्वेश्चन वही जजमेंट उठाकर कोई सिंगल क्वेश्चन भी बना दिया जाए. तो ठीक है, ये तो आपको नोट्स लेने ही लेने हैं. ओके, तो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. एक बार आप इसको गो थ्रू करेंगे तो आप कॉमन सेंस से, लॉजिकल रीजनिंग से, लीगल रीजनिंग से इसका इजीली जवाब दे पाएंगे थोड़ी सी नॉलेज के साथ. ए,
राइट टू प्राइवेसी इज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड एज फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड का मतलब क्या होता है कि किसी आर्टिकल में एक्सप्रेसली मेंशन हो, विच इज नॉट देयर। सो ए इज फॉल्स। बी, right to privacy is protected as a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India. Yes, because our Supreme Court has tried to give the widest interpretation to the Article 21 of the Indian Constitution, ठीक है, जिससे हमने बहुत सी राइट्स अब फंडामेंटल राइट्स बना दी हैं, जिसमें से एक राइट टू प्राइवेसी भी है। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट। सो आई डोंट थिंक कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another question from the para or the comprehensive. As we know, the judgment is K.S. Puttaswamy, and the referred part is a part of the judgment delivered by Justice D.Y. Chandrachud. Next to impossible to answer, क्योंकि ऐसे जजमेंट का अगर मान लो कोई जजेस पूछ ले तो फिर भी आप एक बार को जवाब दे सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर पार्ट किसने बोला है तो ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो जस्ट नोट इट डाउन एंड मूव ऑन। Very important questions from the landmark judgments of the constitutional law, especially from Article 21. In which of the following case it was held that the procedure established by law means the procedure must be just, fair, and reasonable? And the answer is Menka Gandhi versus Union of India, one of the most landmark judgments upon Article 21, in which it is for the very first time given the widest interpretation। जी कि जो कि बिल्कुल ही जिसने बिल्कुल ही ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास और उस एडीएम जबलपुर जैसे केसेस को बिल्कुल ही उलट के रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको केस लॉज याद होने चाहिए। ठीक है, कि कौन सी जजमेंट में कौन से केसेस को रिवर्स किया गया था, कौन से जजमेंट्स जो हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार नजरों से देखे जाते हैं इंडिया में। लैंडमार्क जजमेंट, दो दे आर द लैंडमार्क जजमेंट। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का खैर अपना मजा है पढ़ने का, जजमेंट्स को पढ़ने का, क्योंकि बिना जजमेंट से तो हम कुछ नहीं कर सकते। जजमेंट, एक एक जजमेंट में पूरी की पूरी पॉलिटिकल सोशल सारी की सारी कहानियां हमको मिलती है। जैसे केशवनंदा भारती, एक स्टार्टिंग फ्रॉम सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से लेके केशवानंदा भारत, शंकरी प्रसाद से लेके केशवानंदा भारती तक आते आते जब बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी डॉक्ट्राइन वी गो थ्रू करते हैं, तो वी टेक अ जर्नी from almost a period of 20 to 25 years, and we also discuss the political scenarios, the social scenarios which are there. So इनको पढ़ने का तो ऐसे ही मजा आता है। आई होप आई हैव मेड माय पॉइंट वेरी क्लियर कि आपको कैसे पढ़ना है, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट नोट डाउन एंड वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो दिस क्वेश्चन हैज बीन कैंसिल्ड आउट बाय द यूजीसी नेट, बिकॉज चारों में तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। द क्वेश्चन इज लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2003 केम इनटू फोर्स इन and it came into force on 14th January 2014, which is not mentioned in the options. So this is a misprint maybe, तो ये cancel out कर दिया था यूजीसी नेट ने। तो we will be taking the next question. ओके, दिस इज फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सीधा सीधा प्रोविजंस और सीधा सीधा उनमें क्या है वो पूछ रखा है। तो इसमें मेरी एडवाइस यही है कि वैसे तो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 72 तक से ही 75 से 85% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। बट फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक इंडेमनिटी, प्लेज, बेलर, बेली, बेलमेंट, इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, जो कि 15 से 20% ही क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। बट स्टिल बेल और बेली, प्लेज, इंडेमनिटी, ये कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो कुछ सेक्शंस के साथ मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, बाकी आप अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करते हुए गूगल पे सर्च करके जो बचे हुए सेक्शंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको भी देख सकते हैं। ठीक है, I will not be explaining further because I think the advice that you needed in this question I have given you. So we will take and see the next question. Okay, this is very very important question from the Indian Contract Act, जो कि सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 30 के बीच तक ही डील करता है। हालांकि इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, जो कि बहुत ही सरल है। ठीक है, तो इतनी बेसिक नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए। अगर और आपने बीएलएलबी अगर कर रखी है तो आपको इतनी बेसिक नॉलेज होगी भी। ठीक है, कि आप इसको क्रोनोलॉजिकली असेंबल कर दें। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है? ठीक है, सेक्शन 11 डील करता है। माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी कि मेजर, कोई बंदा 18 साल से ऊपर का है तो देन अ मेजर पर्सन
इज ओनली कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और साउंड माइंड का होना चाहिए। ठीक है, अनसाउंड माइंड का बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मेजर एंड साउंड माइंड होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज अंडर सेक्शन 11। तो ये क्या हो गया, ये हो गया दूसरे नंबर पे। सेकंड इज इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। तो दिस आई हैव डेल्ट इन डिटेल इन द अर्लियर वीडियोस। मैं फिर भी एक बता देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिस्टेक ऑफ लॉ के केसेस में अगर दोनों पार्टी मिस्टेक पे है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड, और एक यूनिलेटरल पार्टी अगर मिस्टेक पे है देन द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक डील कौन करता है, सेक्शन 21 डील करता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 21 डील करता है, पहला वाला। सेक्शन 11 हो गया। तीसरा, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट्स दैट आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही स्टार्टिंग में ही दे रखा है, सेक्शन 2 में डिफाइन भी है। ठीक है, व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और सेक्शन 10 जो है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स बताता है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। इस तरीके से काफी सारी चीजें हैं। तो 1 to 10 में ये डील होता है। तो मोटा मोटा 10 पकड़ लेते हैं हम। तो ठीक है, तो सेक्शन जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज अंडर इन सेक्शन 10 मान लेते हैं। और दिस एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। तो ये 26 से लेके 30 तक कुछ ऑप्शंस हैं। 23 से शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेजरली मैरिज है, गैम्बलिंग है, इस तरीके से रिलेटेड कुछ वो है, बिजनेस रिलेटेड है। द रेस्ट्रेंट ऑफ व्हाट आर वॉइड। सो दिस इज अंडर सेक्शन आई थिंक 26 में फॉल करता है। तो पहला हो गया 11, दूसरा हो गया 21, तीसरा हो गया 10, और चौथा हो गया आपका 26। तो 3, 1, 2, 4, दिस इज द करेक्ट ऑर्डर। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड अ लॉट। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। Another important question from the Indian Contract Act। ठीक है, ये उस 15 से 20% पोर्शन में से है जो मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कि इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, ये 4-5 चीजें हैं जो कि लॉर्ड फेयर की पूछी जाती हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है गारंटी से रिलेटेड। दैट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 देयर आर 3 पार्टीज एंड 3 कॉन्ट्रैक्ट इज द आंसर। कैसे गारंटी क्या होती है, गारंटी आपको सबको पता है। मोटे मोटे टर्म में क्या होती है कि ए ने बोला बी से कि मुझे 10,000 रुपए दे दो, और सी ने बोला कि अगर ए 10,000 रुपए नहीं चुका पाया तो वो उसकी गारंटी मैं लेता हूँ, या फिर मैं श्योरिटी लेता हूँ। तो इसमें कितनी पार्टी हो गई, 3। ए दैट इज प्रिंसिपल डेटर जो कि पैसे ले रहा है उधार, बी दैट इज क्रेडिटर जो कि पैसे उधार दे रहा है, सी दैट इज श्योरिटी और गारंटर जो कि अगर प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट करता है तो उसके केस में जो क्रेडिटर है या लेंडर है उसको पैसे देगा। आई होप ये तीनों पार्टी क्लियर हो गई। नाउ वी विल सी 3 कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर। पैसा लेने उधार लेने वाले के बीच में, उधार देने वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम पैसे वापस करोगे, जो कि प्राइमरी डेट एग्रीमेंट है। ठीक है, दूसरा किसके बीच में होगा, बिटवीन क्रेडिटर एंड श्योरिटी, यानी कि उधार देने वाले के बीच में और गारंटी लेने वाले के बीच में, कि अगर प्रिंसिपल डेटर यानी कि उधार लेने वाला मेरे पैसे उधार वापस नहीं कर पाता है तो श्योरिटी या गारंटर उसके पैसे देगा। तो ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि इंडेमनिटी एग्रीमेंट होगा बिटवीन श्योरिटी एंड प्रिंसिपल के बीच में, कि जब श्योरिटी ने प्रिंसिपल लेंडर को, क्रेडिटर को पैसे दे दिए, तो वो अपना पैसा प्रिंसिपल डेटर यानी कि कर्जा लेने वाले से वसूल कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट था, मैंने बहुत ही सरल तरीके से लिख भी दिया है, समझा भी दिया है। आई होप इट इज वेरी क्लियर इन योर माइंड नाउ। सो वी विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अनदर क्वेश्चन फ्रॉम आईपीसी। और इस क्वेश्चन के लिए तो मेरी जो पहली एडवाइस रहती है वो यही रहती है कि यू शुड नो the concerned section in the BNS plus sedition is now not there in BNS। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू नोट डाउन, और जो मेरी एडवाइस है वही आपको फॉलो। केस लॉस तो आपको इंपॉर्टेंट नोट डाउन करने ही हैं, चाहे वो आईपीसी की हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, चाहे वो किसी भी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन की लैंडमार्क जजमेंट्स हो। तो जस्ट नोट डाउन एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन एनीथिंग। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है दैट द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ राइटिंग आर एन एक्टिविटी विच इज accompanied by
यूज ऑफ फोर्स एंड वायलेंस। ठीक है, तो ये बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें आई डोंट थिंक आई नीड टू एक्सप्लेन, बट द ओनली एडवाइस विच आई वांट टू गिव इज दैट जस्ट नो व्हाट where the writing is now placed under BNS, what is the proviso which is dealing with writing, so just go through that. Another important and easy question from IPC that can very easily be done through the method of elimination. Though we will read the statement. Theft is defined under section 378 of IPC as dishonest removal of movable property out of the possession of any person without his consent, which is correct. क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं खेली है, मूवेबल प्रॉपर्टी ही मेंशन है, तो ये करेक्ट है, तो यानी कि ए। तो अब सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, अब हमें ऑप्शन देखने हैं ए, बी और डी में से। ठीक है, तो वी विल रीड द नेक्स्ट थिंग दैट इज इन द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन पनिशमेंट इज अप टू 3 years अंडर सेक्शन 384 विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, now we will read the third thing that is the offense of robbery is defined under section 391, no it is defined under section 390, तो सी गलत है। तो यानी कि ए ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया क्योंकि उसमें सी ऑप्शन है, यानी कि अब बचे क्या है हमारे पास, ए, या तो आंसर होगा ए, बी और डी, या ए, बी। ठीक है, तो हम डी पढ़ लेते हैं, ई को पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो सही है ही नहीं। तो डकैती इज रॉबरी committed by 5 or more person, so this is absolutely correct, so the answer is A, B, D, the option is B, we don't need to read E. So this is how you attempt a question. So we will be taking the next question. So from this provisions, they have asked the simply the straightforward question. तो इसमें तो आपको सिर्फ नोट डाउन करना है, और मेरी एडवाइस वही है जो मैंने पहले भी दी है, कई बार दे चुका हूँ, दैट इज टू जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन दैट नाउ वेयर द BNS इज डिफाइंड। और ठीक है, तो दिस इज दी ओनली एडवाइस, बाकी एक्सप्लेनेशन इसमें मेंशन कर ही रखी है मैंने, तो यू कैन गो थ्रू दिस एंड आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम IPC। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधी सीधी धाराएं पूछी हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ मेंशन है, सेक्शन 73 में मेंशन है। एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years 82 इन्फेंसी की बात करता है। कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ कहाँ है, सेक्शन 93 में है। एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, ठीक है, सेक्शन 97 95 है। बट नाउ अब क्या है, ये आपको को एक बार देखना है कि BNS में कौन कौन से प्रोविजंस हैं इससे रिलेटेड। तो देन having said that, we will see the next question. Same as earlier, वही चीज है, just go through the assertion and reason and just mark where it has been now mentioned under BNS. So I will read the question. The right of private defense of body extends to causing of death to the assailant in case of assault of throwing or administering acid or attempt to throw or administer acid, which may be reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act. And the reason being is that this provision was inserted under clause 7 of the section 100 by Act 13 of 2013 in view of increasing cases of acid throwing on the girls and women in India, which is absolutely correct. So the answer is both A and R are correct, and R is the correct explanation of the assertion. So I hope very बहुत ही सीधा सवाल है, ठीक है, सीधा सीधा प्रोविजो पूछा है। तो आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिस इज फ्रॉम CPC, आई डोंट नो ये CPC कहाँ से आ गया इन द UGC नेट एग्जाम, बट इजी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे हैं, सीधे सीधे प्रोविजंस पूछे हैं ऑफ द CPC सेंट्रल सिविल प्रोसीजर कोड, और सीधे सीधे उसके सामने पॉइंटर्स दे रखे हैं, और मैंने ये यहाँ मेंशन भी कर दिया है, सो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन। आई एम ऑल्सो कंफ्यूज दैट फ्रॉम वेयर द CPC क्वेश्चन हैज केम, बट ऐसा कभी कभी एग्जामिनर्स कर देते हैं ताकि थोड़ा सा जो वेटेज है वो क्वेश्चंस का उसको हार्ड कर सके, थोड़ा सा बार को रेस कर सके। सो आई थिंक दिस इज व्हाट, सो नो एडवाइस ऑन दिस, सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, और इसमें क्या है कि ये भी एक स्टेटमेंट्स वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। So we know how we are going to eliminate this. We will be doing this through the method of elimination. पहला ऑप्शन हम पढ़ेंगे A. The offense of abatement is defined under section 107 of IPC, which is correct. तो B ऑप्शन automatically eliminate हो गया। Now we will read second. The essential ingredient of the offense of conspiracy is the agreement to commit an offense. Agreement of mind होना ही चाहिए, तो B भी सही है।
ठीक है, यानी कि ए बी, यानी कि अब हम इसको, इसमें से हम बी और डी को तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया, अब ए और सी बच रहे हैं, तो ए और बी दोनों हो गया, तो हम पहले ई पढ़ लेते हैं। ठीक, सॉरी सी पढ़ लेते हैं। अगर सी गलत निकला तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हमें और आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कंस्पिरेसी इज गिवन अंडर सेक्शन 120। नो, इट इज नॉट गिवन अंडर 120। ठीक है, इट इज गिवन, द पनिशमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 120 बी ऑफ द आईपीसी। तो एलिमिनेशन के थ्रू इजीली सॉल्व हो गया, तो ऑप्शन इज सी विच इज करेक्ट। सो वी डोंट नीड टू रीड फर्दर। डी और ई पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं दे रखा है। विद दिस नाउ आई वांट टू रैप अप दिस वीडियो। और इस क्वेश्चन में एडवाइस यही है कि बीएनएस, बार बार मैं वही कह रहा हूँ कि बीएनएस के प्रोविजंस नोट डाउन करने हैं आपको, जहां पर भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आपको दिखते हैं। लगभग 100, 150, 120 प्रोविजंस आईपीसी के हैं, जो कि आपने डीपली पढ़ने होते हैं। तो वो तो आपको सारे पता ही होना चाहिए। ऑलमोस्ट पूरा डेफिनेशन क्लॉज आपको याद रखना है, क्योंकि उससे भी कई बार बहुत बहुत सवाल पूछे गए हैं कि वॉलंटरी ऑफेंस किस में डिफाइंड है, ये किस में डिफाइंड है, क्राइम किस में डिफाइंड है, ऑफेंस किस में डिफाइंड है, ग्रीवियस हर्ट किस में डिफाइंड है, हर्ट किस में डिफाइंड है। तो इस तरीके के जो डेफिनेशन क्लॉज है बेसिकली वो आपको पूरा पढ़ना है। So having said this, so I will be wrapping up this video. Hope you like this video, you like my effort, and this is very beneficial for you. The PYQs are beneficial, and I have explained. So with all this, I will be taking, I will be saying goodbye to all of you, and so we will be meeting in the next video.